कृष्ण कन्हैया। कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है, टच करो। वो देखो सामने ठाकुर जी ने पहन ली। બસ તો આવી જ બીજી સુંદર મોમેન્ટ્સ માટે ખાસ કરીને આજનો વિડીયો જોજો, જેમાં હું તમને ઝાંખી કરાવીશ મ્યુઝિયમ ઓફ ગ્રેસની. તો હવે અમે ફાઇનલી અહીંયા નાથદ્વારામાંથી ચેકઆઉટ કરી રહ્યા છીએ. અને હું જ્યારે બી અહીંથી ચેકઆઉટ કરું છું, હું આ જ કપડાં પહેરીને ચેકઆઉટ કરું છું. 2 વાર તો એવું થયું છે. અમે ખાલી રૂમમાંથી ચેકઆઉટ કર્યું, બટ અમે હજી નાથદ્વારામાં જ છીએ. જો આ સુંદર મજાના તળાવ પાસે થઈને અને આવા સરસ મજાના સર્કલ પાસે થઈને અમે જઈ રહ્યા છીએ મ્યુઝિયમ ઓફ ગ્રેસમાં. નાથદ્વારામાં ઓલમોસ્ટ બધી જગ્યાએથી આ શંકર ભગવાનની મૂર્તિ દેખાતી હતી. મ્યુઝિયમ ઓફ ગ્રેસમાં પહોંચીને અમે સૌથી પહેલાં વન નાસ્તો કર્યો. વન ભોજન તો કરે, અમે લોકોએ વન નાસ્તો કર્યો. સરસ મજાની ચા લઈ આવ્યા અને ઘરેથી લઈ ગયેલો નાસ્તો અમે ત્યાં મ્યુઝિયમ ઓફ ગ્રેસના કમ્પાઉન્ડમાં બેસીને કર્યો. પછી અમે લીધી ટિકિટ. તો જો અહીંયા તમને ટિકિટના ભાવ પણ દેખાતા હશે. આખું મ્યુઝિયમ ડિટેલમાં જોતા અમારે કલાકથી 1.5 કલાક થયો હતો, જેની હું તમને અહીંયા ઝાંખી બતાડું છું. એમાં પણ કેટલીક વસ્તુ અમે અનકટ રાખી છે, તમને જોવાની બહુ મજા આવશે, તો ખાસ જોજો. ફોટા પાડના અલાઉ છે, અડવાનું નથી. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. ये महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी अग्नि का स्वरूप, जल और अग्नि आपस में स्पर्श करते हैं तो एक रेम्बो. તો આ છે અમારા ગાઈડ સુમિતભાઈ શર્મા. ગાઈડની અલગથી ફીસ હોતી નથી, એ તમારી ટિકિટના ભાવમાં જ આવી જાય છે અને તમને બધે જ ડિટેલમાં બધું જ એક્સપ્લેન કરશે. બહુ જ સુંદર એક્સપ્લેન કરતા હતા સુમિતભાઈ, અને જ્યાં જ્યાં ઓડિયો વિડીયો વિઝ્યુઅલ્સ હશે એ પણ તમને બતાવશે. પુષ્ટિ માર્ગની સ્થાપનાથી લઈને તમામ માહિતી અહીંયા આ મ્યુઝિયમમાં તમને જાણવા મળી જશે અને બહુ જ સુંદર રીતે, જરાક પણ બોર થયા વગર. जब किसी भी चीज को अपन खाते हैं या कुछ भी करते हैं तो अपन नहीं खा रहे, वो खिला रहा है. यहाँ आप आए, आपने सोचा अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, 140 रुपए ज्यादा है कम है, कई लोगों के दिमाग में आता है. मगर जब यहाँ अंदर आते हैं तो सब पता चलता है. अब आप पहली बार आए, 1 साल बाद आप वापस यहाँ आते हो तो ये आपकी बैठक हो गई. आपने श्री कृष्ण के बारे में जाना और समझा. फर्क इतना सा है कि वल्लभाचार्य जी ने जगह जगह बैठकर पुष्टि मार्ग और गीता भागवत प्रण का प्रचार किया. जहां जहां इन्होंने प्रचार किया वहां वहां इनकी बैठक बनती गई. सबसे ज्यादा प्रचार और बैठक इन्होंने उत्तर प्रदेश में की, उसके बाद गुजरात और राजस्थान में केवल एक ही बैठक है, पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर, और सबसे बड़ी जो बैठक है वो है चंपारण. જો તમે વૈષ્ણવ છો અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને દિલથી માનો છો તો તમારે આ મ્યુઝિયમમાં એકવાર ચોક્કસ જવું જોઈએ. તમને બહુ મજા આવશે અને ઘણું બધું નોલેજ મળશે. वल्लभाचार्य जी के 2 पुत्र गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी. તો હવે આ બધું ડિટેલમાં જાણ્યું કે કોને કઈ સેવા મળી અને કઈ રીતે, ને અત્યારે હાલ એમની કઈ પેઢી ચાલી રહી છે, શ્રીનાથજીમાં અત્યારે કોણ સેવા આપી રહ્યું છે અને હવે પછી આવનારી પેઢી કોણ છે, એ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન એમને અમને ડિટેલમાં આપી અને પછી ત્યાંથી અમે લોકો આગળ વધ્યા. અને ત્યાં આ રીતના ઓડિયો વિડીયો વિઝ્યુઅલ્સ હતા, એ બધા ડિટેલમાં જોયા. અહીંયા તો હું ખાલી 5-10 સેકન્ડનું મૂકું છું, બાકી ત્યાં ઓલમોસ્ટ 15-15 મિનિટના ઓડિયો વિડીયો વિઝ્યુઅલ્સ હતા. આ મ્યુઝિયમ નાથદ્વારામાં જ છે, તો તમે લોકો નાથદ્વારા ગયા છો કે નહીં? જો નાથદ્વારા ગયા છો તો આ મ્યુઝિયમ તમે જોયું છે કે નહીં, ખાસ કમેન્ટ કરીને यहाँ से જણાવજો. 28 किलोमीटर दूर एकलिंग जी महादेव का मंदिर है. ये महादेव से डायरेक्ट बात करते थे, जैसे गंगाबाई श्री कृष्ण से बात करती थी, वैसे ये डायरेक्ट मेवाड़ की जनता अगर इसके नखरे उठा ले तो ही इसी को रोकना है, अन्यथा जाने देना है. क्योंकि ये अलग अलग श्रृंगार करता है, 8 समय की झांकियां लेता है और अलग अलग भोग लेता है. घूम फिर के ये बात गंगाबाई के पास आई और गंगाबाई ने श्री कृष्ण को बताया, प्रभु आपके लिए तो महादेव ऐसा ऐसा बोल रहे हैं. तो इन्होंने भी एक सुंदर सा जवाब दिया कि वो है बोला, नाम से भी बोला है, काम से भी बोला है. उसको तो 2 रुपए की राख लगाकर बैठा दो तो भी वो बैठा रहेगा, मगर मेरे नखरे वो जानता है. मैं मेवाड़ की जनता को वचन देता हूं, मैं यहाँ का जल भी ग्रहण नहीं करूंगा. आज भी जल यमुना नदी से आता है, सीधा मंदिर में रखाया जाता है. मंदिर में जो झारी जी भराई जाती है और उसी जल का जो प्रसाद बनता है वही ठाकुर जी ग्रहण करते हैं. कहते हैं किसी के कारणवश ये आए. मीराबाई की कजन सिस्टर अजब कंवर भाईसा, इनके साथ पासे खेलती थी चौपट. श्री कृष्ण को पता थी कि आज मेरे साथ ये पासे क्यों खेल रही है, मगर श्री कृष्ण जी जान चला के हारते गए और अजब कंवर भाईसा को जिताया और बोला कि मांग तुझे क्या चाहिए. तो अजब कंवर भाईसा ने कहा कि आप मेरे मेवाड़ में पधारिए. आज 350 साल हो गए ठाकुर जी को यहाँ विराजते हुए.
150 साल बाद अपन भी जीवित रहे कि ना रहे, ये वापस जतीपुरा चले जाएंगे। आज भी निज मंदिर में रथ रखा हुआ है। नाथद्वारा के मंदिर में गेट नंबर 2 के पीछे अब उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया है, कांच में वो बिल्कुल पैक है। जब सुबह सुबह पुजारी झाड़ू निकालता है तो आज भी यमुना नदी का मिट्टी लगा हुआ रहता है। रोज मंगला से लेकर शयन तक ठाकुर जी यहाँ विराजते हैं। विराजने के बाद 7 साल का बालक है, माँ की याद आती है। जतीपुरा जाते हैं, माँ से मिलते हैं। माँ से मिलने के बाद निधि वन में रास लीलाएं करके मंगला में वापस यहाँ आ जाते हैं। औरंगजेब एक बहाना था, ठाकुर जी को वचन निभाना था। ये जो पूरी लीला रची केवल अजब कंवर बाईसा के कारण। औरंगजेब को ये वहां भी हरा सकते थे, मगर औरंगजेब इनका मंदिर तोड़ने श्रीनाथ जी के मंदिर में आया। उसकी माँ भी उसके साथ आई। जैसे ही औरंगजेब मंदिर के अंदर गया, अंधा हो गया, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बाहर आके बोला, माँ मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो माँ ने कहा, बेटा ये है छलिया, छल करता है, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब तू इसके पैर पकड़ेगा तो ही ये तेरे को माफ करेगा। मगर औरंगजेब घमंडी था। वो वापस मंदिर के अंदर गया, थक हार के उसने ठाकुर जी से माफी मांगी और ठाकुर जी ने उसको माफ किया। माफ करने के बाद ठाकुर जी ने उसकी आंख उसको वापस दी। आंख देने के बाद औरंगजेब बहुत खुश हुआ। खुश होने के बाद जो कोहिनूर डायमंड हीरा जो ठूठी पे लगाया जाता है, वो औरंगजेब की मां ने ही भेंट किया था। आज भी होली के अगले दिन, धुलंडी के दिन, बादशाह की सवारी निकाली जाती है। उसमें औरंगजेब का पूरा बाकायदा आदमी बनाया जाता है। उसको पूरे नाथ द्वारा में जुलूस द्वारा निकाला जाता है। निकालने के बाद उसको मंदिर में ले जाया जाता है और मंदिर में ले जाने के बाद पनिशमेंट की तौर पे मंदिर की सीढ़ियों को दाढ़ी से झाड़ू साफ करता है। ये कहानी रियल है, वो 150 साल तक होती रहेगी। उसके बाद यहाँ से ठाकुर जी वापस ब्रिज में चले जाएंगे। 84 વૈષ્ણવની વાર્તા એટલે પુષ્ટિ માર્ગના 84 પરમ ભક્તોના દિવ્ય જીવન પ્રસંગો અને અડગ ભક્તિનું પ્રેરણાદાયી દર્શન, જે તમને અહીંયા સંક્ષિપ્તમાં જોવા મળશે. પછી ત્યાંથી આગળ જઈએ તો કેટલા પ્રકારની ભક્તિ હોય એ દર્શાવ્યું હતું. શ્રવણ ભક્તિ, કીર્તન ભક્તિથી માંડીને સખ્ય ભક્તિ અને આત્મનિવેદન ભક્તિ તમામ વિશે ડિટેલમાં લખેલું હતું. પછી પુરુષોત્તમ ભગવાનના સહસ્ત્ર નામોનો ઉદ્ભવ કઈ રીતે થયો અને એનું મહત્વ શું છે એ પણ ત્યાં લખેલું હતું. અને પછી અહીંયા છે અષ્ટસખા. અષ્ટસખા એટલે શ્રીનાથજીના 8 પરમ ભક્ત કવિઓ, જેમણે પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ અને સેવાને સમર્પિત અનેક કીર્તનો અને પદોની રચના કરી અને એમના કીર્તનો આજે પણ શ્રીનાથજીની હવેલીમાં ગવાય. અહીંયા વૈષ્ણવોને અને વડીલોને તો મજા આવશે જ, પણ નાના બાળકોને પણ મજા આવશે, કારણ કે જરાક પણ બોર થયા વગર એમને ઘણું બધું ભક્તિ વિશેનું નોલેજ મળશે. सुंदर प्रसंग है। उनकी मनभावन सेवा में असंख्य कलाएं कार्यरत है। यह सारी कलाएं प्रभु को समर्पित है। હવે હું તમને શ્રીનાથજીના 8 દર્શન ટૂંકમાં કરાવું છું, મંગળાથી લઈને શયન સુધી. દરેક દર્શનનું પોતાનું આગવું મહાત્મ્ય અને દિવ્ય ભાવ છે. તો ચાલો એક પછી એક શ્રીનાથજીના 8 દિવ્ય દર્શનનો લાભ લઈએ. मंगला, यह प्रथम समय के दर्शन है। इसमें भगवान को नींद से जगाया जाता है। श्रृंगार, मंगला के बाद प्रभु को स्नान कराया जाता है और ऋतु अनुसार वस्त्राभूषणों से ग्वाल अर्थात उस समय के दर्शन जिसमें श्री कृष्ण की गोपाल बाल के रूप में सेवा होती है। अन्य गोप बालकों के साथ गोरे चराने जाने से पहले भगवान को ताजा दही से भरपूर लस्सी यानी कि दहिया दी। राजभोग, मध्याह्न काल में यशोदा माता श्री कृष्ण को भोजन के लिए बुलाती है। यही राजभोग कहलाता है। राजभोग में वनोत्सव के अवसर पर गोपियों द्वारा लाया गया भोजन थाल भी दिया जा सकता है। उत्थापन, वन में दोपहर के विश्राम के बाद श्री कृष्ण दोपहर की लीलाओं का प्रारंभ करते हैं, जिसे उत्थापन दर्शन कहा जाता है। भोग, पुलिंदी नामक भीलनियों ने प्रभु को फल समर्पित किए थे। बाद में
भगवान गायों को घर की ओर लौटाते हुए प्रतीक्षा में निरत अपने भक्तों के दिन भर के विरह को समाप्त करने के लिए घर की ओर प्रयाण करते हैं। संध्या आरती। शाम को जब भगवान अपनी गौ को लेकर घर पहुंचते हैं, वह संध्या आरती का समय होता है। गोकुल में प्रविष्ट होते ही भगवान को कई सामग्रियां समर्पित की जाती है और उनकी आरती उतारी जाती है। शरद। यह श्री कृष्ण का रात्रि भोजन का समय है। भगवान के प्रत्येक दर्शन के साथ अनेक विधि लीलाएं और भाव जुड़े हुए हैं। कृष्ण या तो रमण भाव से गोपियों के साथ होते हैं या बाल भाव से माता यशोदा के साथ। इधर आओ, सामने देखो, अब इधर देखो, कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है, टच करो, आपको करना है, टच करो। वो देखो सामने ठाकुर जी ने पहन ली। आप मुकुट लगाओ, वो देखो सामने पहन लिया। आप एक माला लो, आप इधर आओ, एक बांसुरी लगाओ, वो देखो सामने बांसुरी पहन ली। आप कमल लगाओ, आप छड़ी लगा दो, बस अब दर्शन करो। बोलेंगे कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर यमुने महाराज की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय। અને છેલ્લે સરસ મજાની મ્યુઝિક સંભળાતું હતું, દરેક હેડફોનમાં અલગ અલગ વાજિંત્ર વાગતું હતું, જે અમને સાંભળવાની બહુ જ મજા આવી। શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની ગોવર્ધન લીલાના સરસ મજાના દર્શન થશે। તો મારા તરફથી તમને ખાસ રિકમેન્ડ કરું છું કે એક અદ્ભુત અને સુંદર અનુભૂતિ માટે આ જગ્યાએ ખાસ જજો। आप यहीं पे रहते हो? जी हाँ, तो ये बनाया किसने, उसके मालिक कौन? गवर्नमेंट के थ्रू है ये। ओके, तो आप सब यहीं पे जॉब करते हो? हाँ, फिर ओके, फिर भी आप सबका जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे कि आपने पूछा कैसा लगा, वरना जॉब करने वाले से पूछते नहीं। हमारे यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं ना, हम उनको मतलब कंपलसरी पूछते हैं तो आप यहाँ पे आए, आपको कैसा लगा। और ये है कि नागौरा में आप आए हो और ये नहीं देखा पॉइंट तो कुछ नहीं देखा नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पूरे नागौरा में और पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट पुष्टि मार्केट आपको फर्स्ट पुष्टि मार्केट। ओके, नहीं अच्छा लगा। इसका पूरा इतिहास बताते हैं अपने। हम लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, दिन में 10 बार अंदर जाते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं भरता है उस चीज से। हमको यूँ लगे कि अंदर ही रहे बस। सही है, सही है। नहीं, आप सबका प्रेम भाव भी बहुत बढ़िया है। ये सुमित सर है ना? हाँ सर, ये सुमित, ये हमारा सुमित भैया ये है। हमारा अंदर गाइड है, गाइडिंग। ये भाई तो हाँ। ठाकुर जी ने बोला कि मुझे तेरा नाम लेते और लेता रहता है, लेता रहता है पूरा यही दिन। काम है हमारे। हाँ। दिन भर भैया यही क्या नाम है, क्या? सुमित शर्मा। सुमित शर्मा सुमित सर। जी। सबका है। वैसे भी हम यहाँ पे टिकट लेने आए तो टिकट विंडो पे जो भैया थे उनका वो नेचर भी अनिश अच्छा भैया, है। अनिश जी हमारा अनिश जी हाँ, सारा वो ओनर है हमारा। नहीं, कहीं कहीं जगह पे टूरिस्ट प्लेस पे जाते तो क्या वो लोग थक गए होते हैं। अब देखो। आप सब एकदम, अब सुनो, आप जॉइन को भी आप आओगे सुनो। ना तो हमारा यही भाई मिल रहेगा। जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे। नहीं, सब आपका पूरा वाइफ बहुत अच्छा है यार। नहीं, आप ये अभी मॉर्निंग का है, शाम को भी आओगे तो यही रहेगा। यही वाइफ रहेगा, सही है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय। એક સુંદર અનુભવ સાથે અમે ત્યાંથી રજા લીધી ને અમે નીકળી પડ્યા આગળની જગ્યા ફરવા માટે, જે આપણે જોઈશું બીજા વિડીયોમાં। રાધે રાધે।